Hello everyone. In our today's session, we are going to discuss about chapter 7 from Indian Economic Development. In our last session, we have finished our chapter 6, which was about rural development. Okay. And here the chapter is about employment. We are going to discuss few interesting topics here. The chapter is very easy. So let's start without wasting much time. Okay, let's start about the introduction here, everyone. See, to work is an important aspect of human life. So everyone is working for earning the livelihood. Okay, business, profession, and employment. These are the three economic activities a person is engaged in. Now, people work for earning the living. It gives us a sense of self worth and enables us to relate ourselves meaningfully with others. See, people are doing some work for earning the livelihood, and it is only not only for earning the livelihood, but it also relates a person with other person. This enables human resource to contribute towards national income, and the person who is working, he contributes towards the national income, and hence the development of country is there. Okay, so the development of the country by engaging in various economic activities, that is the real meaning of earning a living. Studying about working people enables us to understand the quality and the nature of employment in our country. So if we study the working of the people, we will come to know about the situation of employment in our country and help us to plan human resource accordingly, and we can plan about human resources accordingly so that more job opportunities can be generated. It helps us to analyze contribution to national income by different sectors. Okay, see, किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है उसमें तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में होता है. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल इश्यूज. ओके, इफ वी नो तीनों सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में है वो पढ़ते हैं, वो समझते हैं, तो हमें सोशल इश्यूज कौन से हैं उनके बारे में पता चलेगा, सच एज एक्सप्लॉयटेशन of marginalized section of the society, child labor, etc. In this chapter we will study about different aspects जो employment से related हैं, जैसे कि unemployment मतलब क्या, underemployment मतलब क्या, different types of unemployment हैं, वो कौन कौन से हैं, causes of unemployment, how to overcome those causes of unemployment, how to solve the issue, how to solve the problems of unemployment. So in this chapter we are going to learn about all these topics in detail. Let's start our topic with the basic concepts. Okay, now to understand employment and problems of unemployment and underemployment, we need to understand first of all some basic concepts. Okay, unemployment क्या है, underemployment क्या है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ों को सही से समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझने होंगे. अब सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप ये सबको पता होगा. ओके, दैट इज जीडीपी. जीडीपी क्या है? इट इज़ द वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर. वंस अगेन, जीडीपी क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर. ओके, कितने गुड्स एंड सर्विस बनते हैं उसकी बात नहीं है. गुड्स एंड सर्विस जितने बने हैं एक साल में किसी कंट्री में, उनकी वैल्यू क्या है, जब उनकी हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं जीडीपी. ह्यूमन रिसोर्स इंडल्ज इन वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क. ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अलग अलग किसी न किसी तरह से किसी न किसी काम में एंगेज्ड है. फार्मर्स है वो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने में एंगेज्ड है. इंडस्ट्रीज़ है वो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में एंगेज्ड है. टेक्सटाइल मिल है वो कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं. ट्रक्स हैं वो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने में एंगेज हैं. सो वन और द अदर वे द पर्सन इज एंगेज्ड इन डूइंग सम वर्क.
So the money value of all the goods and services produced in a country in a year is called GDP at market price. अब ये जो GDP-MP है, मार्केट प्राइस है, इसमें अगर हम NFIA या नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं डिटेल में, GDP-MP में अगर हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये अगर प्लस करते हैं तो GNP-MP हो जाता है. डोमेस्टिक इनकम में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर प्लस होता है तो वो हो जाता है नेशनल इनकम. ओके, ये चैप्टर नेशनल इनकम वाले टॉपिक में हम डिटेल में देख चुके हैं. ओके, so that was first topic GDP के बारे में. Now the next topic. The next topic is about economic activities. Okay, let's talk about economic activities. क्या है? These are activities which contribute to GDP of a country. Okay, GDP में जो activities contribute करती हैं या नेशनल इनकम में जो एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे. जैसे फार्मर्स है, grow wheat for sell, doctor treats the patient, broker helps in purchasing and selling of property. तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. ओके, एवरीवन इज एंगेज इन डूइंग सम एक्टिविटी फॉर अर्निंग द मनी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशनल इनकम. उन एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. अब थर्ड कॉन्सेप्ट वर्कर के बारे में. ओके, अब वर्कर किसे कहते हैं? देखें, all those people who are engaged in economic activity. अब हमने भी क्या देखा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब देखा. अब जितने भी वर्कर हैं, वो जितने भी लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे? उन सबको हम वर्कर कहेंगे. all the people who are engaged in the economic activity are considered as worker. कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कोई कम कंट्रीब्यूट करता है, कोई ज़्यादा इनकम अर्न करता है, कोई कम इनकम अर्न करता है, बट ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज द वर्कर. अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल में देखा था, फार्मर है, डॉक्टर है, ब्रोकर है, ये सब वर्कर्स ही हैं. इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से एवरीवन हु इज एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज द वर्कर. अब वर्कर के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे. एवरीवन, ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर वर्कर. नंबर वन, इवन इफ अगर वो टेम्पररीली कोई रीज़न की वजह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ड्यू टू इलनेस, इंजरी, डिसेबिलिटी, फेस्टिवल, बैड वेदर, देन ऑल्सो दे आर वर्कर. वन और द अदर रीज़न की वजह से वो टेम्पररीली अगर नहीं कर पाते हैं कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, स्टिल दे आर वर्कर. नाउ वर्कर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, जो मेन वर्कर हैं उनके नीचे भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी वर्कर हैं. वर्कर्स आर पेड बाय देयर एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स उनको पे करते हैं. तो एंड दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे वो भी वर्कर हैं. सी, जिनके नीचे जो काम करते हैं वो भी वर्कर हैं. जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, दे आर ऑल्सो वर्कर. नाउ वर्कर्स के बारे में थोड़ा डिटेल. टाइप्स ऑफ वर्कर. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर, हायर्ड वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. नाम से ही क्लियर है. हायर्ड मतलब दे वर्क फॉर समवन एंड दे गेट द सैलरी इन रिटर्न, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं. वैसे अब हायर्ड वर्कर की अगर बात करें तो उसमें दो तरह के वर्कर होते हैं, रेगुलर वर्कर एंड कैजुअल वर्कर. अब हायर्ड वर्कर के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं. दीज आर वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स. ओके, दे आर डूइंग जॉब अंडर समवन एंड दे आर पेड रेम्यूनरेशन और सैलरी इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज. दिस इज ऑल्सो नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट. इसे हम वेज एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट. दे रिसीव वेजेस फॉर रेंडरिंग द सर्विस. एग्जाम्पल, डॉक्टर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी लेके काम कर रहा है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सैलरी लेके काम कर रहा है, ओके, देन ही इज नोन एज हायर्ड वर्कर. अब हायर्ड वर्कर में दो तरह के वर्कर्स होते हैं, रेगुलर एंड कैजुअल वर्कर. अब इन दोनों के बारे में देखते हैं. रेगुलर वर्कर जो परमानेंट बेसिस पे जॉब करते हैं, ओके, उनको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पेंशन है, ग्रेचुइटी है, प्रोविडेंट फंड है, ये सब बेनिफिट्स उनको मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, टीचर इन अ स्कूल, बस कंडक्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब हैं वो परमानेंट वर्कर्स हैं. लेकिन ये सब अगर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो उनका जॉब जो है वो परमानेंट इन नेचर है. अब इंडिया में जितना भी वर्क फोर्स है उसमें 18% वर्क फोर्स जो है वो रेगुलर वर्कर है. ओके, मतलब दे आर गेटिंग द व्हाट यू कॉल सोशल बेनिफिट्स एंड
सच एज पेंशन, ग्रेजुइटी एंड ऑल दैट. अब नेक्स्ट जो है वो है कैजुअल वर्कर्स. अब कैजुअल वर्कर्स अगर देखें तो दे आर नॉट ऑन परमानेंट बेसिस, दे आर नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, एंड उनको कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है पेंशन, ग्रेजुइटी की तरह से. जैसे कि वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं, लेबर्स जो कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ओके, सो उनको ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. ओके, कुछ है प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं. ओके, पेंशन है, व्हाट यू कॉल ग्रेजुइटी, ये सब दिया जाता है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं होता है. ओके, अब ऐसे वाले कितने परसेंटेज में है? हमने देखा था कि रेगुलर वर्कर जो हैं वो 18% वर्कफोर्स जितना है उसका 18% रेगुलर वर्कर हैं, एंड कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो 30% हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ये ऐसे वर्कर हैं जो खुद अपने ही रिसोर्सेज यूज़ करते हैं एंड दे आर अर्निंग देयर लिविंग. अपने ही रिसोर्सेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये खुद का सब यूज़ करते हैं एंड दे आर अर्निंग देयर लिविंग्स. दीज आर द वर्कर्स who own and operate an enterprise to earn their livelihood. ये खुद का ही कुछ बिजनेस या खुद के रिसोर्स यूज़ करके कुछ काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड. इन अदर वर्ड्स, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय अदर्स, एक्चुअली वो दूसरे किसी को काम पे रखते हैं. दे प्रोवाइड जॉब टू अदर्स. अब ऐसे वाले इंडिया में कितने हैं? 52%. सबसे बड़ा शेयर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का है. 18% है वो रेगुलर वर्कर का है, 30% है वो कैजुअल वर्कर का है, एंड 52% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का है. ओके, फॉर एग्जांपल शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है. ओके, खुद का कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस हो, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं. ओके, नाउ लेट्स लुक एट सर्टेन डिफरेंसेस. हायर्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, हमने ऊपर देखा, ये वही बात यहाँ पे आएगी डिफरेंस में. हायर्ड वर्कर, दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, and self-employed में they use their own resources for earning their living. Number 2, these work on the resources, they work on resources provided by others. मतलब ये खुद के रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं या दूसरे के रिसोर्स पे काम करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर, फॉर एग्जांपल दे वर्क ऑन रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अदर्स. ओके, दूसरे के रिसोर्सेज पे काम करते हैं एक्चुअली हायर्ड वर्कर्स. ओके, दूसरे के रिसोर्सेज पे ये लोग काम करते हैं. ओके, नाउ सिविल इंजीनियर जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जुड़ा हुआ है लेकिन ये रिसोर्सेज किसी और के हैं. डॉक्टर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है लेकिन वहाँ रिसोर्सेज किसी और के हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है? वो खुद के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. देयर ओन लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. डॉक्टर वर्किंग इन हिज ओन क्लिनिक, वो क्लिनिक उसका ही है, रिसोर्स उसके ही है, सो इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. ओके, अब रेगुलर एंड कैजुअल वर्कर्स में, रेगुलर वर्कर मतलब वो परमानेंट बेसिस पे होते हैं एंड कैजुअल वर्कर वो परमानेंट बेसिस पे नहीं होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं. एंड हायर्ड रेगुलर वर्कर जो हैं उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, पेंशन एंड ऑल दैट मिलते हैं. सॉरी, रेगुलर वर्कर को ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं, कैजुअल वर्कर को ये कोई बेनिफिट मिलता नहीं है. एंड रेगुलर वर्कर जो हैं दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, वो ट्रेड यूनियन उनका होता है, यूनिटी उसमें होती है. लेकिन कैजुअल वर्कर है उनका वीक बार्गेनिंग पावर होता है एंड ट्रेड यूनियन जैसा इसमें कुछ होता नहीं है. दैट इज़ द थर्ड कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर राइट नाउ लुकिंग अबाउट, दैट इज़ वर्कर्स के बारे में डिटेल में हमने देखा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स. अंडरस्टैंड लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स क्या है. सबसे पहले लेबर फोर्स के बारे में बात करते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल दोज हु आर वर्किंग and though not working but are seeking work and are available for work. In other words, it includes employed and unemployed both. देखो फिर से यहाँ पे हम कैसे लोगों को रखेंगे? those who are working and those who are not working but they are willing to work, they are seeking to work, seeking for work, they are available for work. In other words, we are including here employed and unemployed workers दोनों को. ओके, सो सम अप करने के लिए ये चीज़ को, लेबर फोर्स में हम एज ग्रुप 15 से लेके 60 ईयर्स के बीच में जो लोग होते हैं उनको हम रखेंगे हु आर एम्प्लॉयड. नंबर 2, आर विलिंग एंड अवेलेबल टू वर्क दो दे आर प्रेजेंटली अनएम्प्लॉयड. ओके, सो 15 से 60 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं एंड हु आर विलिंग टू वर्क एंड प्रेजेंटली वो लोग अनएम्प्लॉयड है, दोनों को हम यहाँ पे गिनेंगे. So labor force does not include what? Labor force does not include what? Children below 15 and above 60.
बिकॉज हमने पहले ही देखा था 59 एंड 60 के बीच का होता है लेबर फोर्स जो है. सो बिलो 59 एंड अबव 60 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हैंडीकैप को इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड ऐसे लोग हु आर नॉट विलिंग टू वर्क ऐसे को भी इंक्लूड नहीं करेंगे. लेबर फोर्स में जो विलिंग है काम करने में उन्हीं को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो काम नहीं करना चाहते हैं उनको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वर्क फोर्स. ओके, लेबर फोर्स के बारे में हो गया. अब हम वर्क फोर्स के बारे में अब देखते हैं. ओके, अब हम वर्क फोर्स के बारे में बात करते हैं. वर्क फोर्स क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज who are employed at a particular point of time. Right now at a particular point of time जो लोग engaged हैं working में उनको ही हम यहाँ पे गिनेंगे. In other words, this refers to those person who are actually working. यहाँ पे हम उन्हीं लोगों को गिनेंगे जो लोग actually work कर रहे हैं. So workforce include person who are engaged in economic activity. In other words, it is the total number of people who are actually working. हालांकि लेबर फोर्स में हम उनको गिनते हैं जो वर्क कर रहे हैं, प्लस दोज आर विलिंग टू वर्क, अवेलेबल फॉर द वर्क, एंड दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, उनको भी हम गिनते हैं. ओके, लेकिन वर्क फोर्स में वी आर एक्चुअली इंक्लूडिंग ओनली दोज पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो वर्क फोर्स जो है वो किसको इंक्लूड नहीं करता है? ओके, लेट्स सी दैट वर्क फोर्स डज नॉट इंक्लूड अनएम्प्लॉयड पीपल इवन दो दे आर विलिंग टू वर्क एंड अवेलेबल फॉर वर्क. ओके, अगर कोई अवेलेबल है वर्क के लिए, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दोज हु आर अवेलेबल फॉर वर्क, उनको हम लेबर फोर्स में गिनते हैं, लेकिन वर्क फोर्स में हम उनको नहीं गिनते हैं. ओके, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स. सो लेबर फोर्स देखने जाओ तो वो ज़्यादा होता है. सो लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड अवेलेबल फॉर वर्क. इन अदर वर्ड्स, लेबर फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग, जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं वो वर्क फोर्स हुआ, प्लस नंबर ऑफ पर्सन दोज हु आर नॉट वर्किंग बट दे आर अवेलेबल एंड दे सीक टू वर्क. ओके, सो वर्क फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग. एक्चुअली इन शॉर्ट, जो लोग एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम वर्क फोर्स में गिनते हैं. ओके, टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं तो कैसे मिलेगा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स. उतने लोग जो हैं अवेलेबल काम के लिए लेकिन उनके पास काम नहीं है, दैट इज अनएम्प्लॉयड पर्सन. नाउ ड्यूरिंग 2011-12 इंडिया के पास 473 मिलियन वर्क फोर्स था. 473 मिलियन वर्क फोर्स मतलब वो आर एक्चुअली एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिंस मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल रूरल एरियाज में रहते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स रूरल एरिया में ज़्यादा है. The rural worker constitute of 3/4 of 473 million. 473 का जो 3/4 पोर्शन है वो रूरल एरिया में है. मैन मेजोरिटी वर्क फोर्स होता है इंडिया में. अबाउट 70% ऑफ द वर्कर्स आर मैन एंड रेस्ट जो है वो वुमेन्स हैं. वुमेन वर्कर अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ द रूरल वर्क फोर्स, वेयर एज इन अर्बन दे आर जस्ट 1/5 ऑफ द वर्क फोर्स. ओके, ये डेटा आप समझो. जितने भी विमेन वर्कर्स जो हैं वो रूरल एरिया में 1/3 हैं एंड अर्बन एरिया में यहीं 1/5 हैं. अब बेसिकली इन आवर कंट्री वुमेन्स जो हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज होती है? कुकिंग, फेचिंग वाटर, फ्यूल वुड, फार्मिंग में लेबर की तरह, ये सब लेबर एक्टिविटी में ये जुड़े हुए रहते हैं. दे आर नॉट पेड वेजेस इन कैश, और इनको कुछ और रिटर्न नहीं मिलता है. फॉर दिस रीज़न इनको हम वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके, अब एम्प्लॉयमेंट. इट इज़ एन एक्टिविटी विच enables a person to earn. Employment मतलब a person is engaged in the activity where he is earning. When undertaken this activity, a person renders services. अगर कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, if I am doing job at the school, so what I am doing actually here, I am rendering my services and I am getting paid in return. If all those who are willing and able to work at the existing wage rate, and उनको काम मिल जाता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ जाएगी. समझो ये डेफिनेशन भी है. ओके, फ्यू थिंग्स. All those who are able to work, willing to work at the existing wage rate, and उनको काम मिल जाता है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन हो जाती है. इफ़ सम ऑफ दिस काम नहीं मिलता है जिनको, तो वो अनएम्प्लॉयड के सिचुएशन में आ जाते हैं. द नेचर ऑफ
the nature of employment in India is multifaceted. Some get employment throughout the year. कुछ लोगों को पूरा साल काम नहीं मिलता है, कुछ ही महीनों में काम मिलता है. अब many workers जो काम करते हैं उनको fair wages नहीं मिलते हैं. So while estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed. So हम इन सब वर्कर को गिनते हैं, okay, employment की calculation में. Now employment भी again classified under hired worker and self-employed worker. आगे जो हमने देखा वहीं, जो hired worker हैं वो wage employment है and self-employed है वो self-employment में है. Okay, I am in the school, so hired worker here. So मैं भी यहाँ पे वर्कर हूँ, बिजनेसमैन भी वर्कर है, सब लोग वर्कर ही हैं इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से. ओके, तो आई एम जो मेरे जो अर्निंग है वो वेज एम्प्लॉयमेंट है, एंड जो खुद का बिजनेस चलाते हैं उनका जो अर्निंग्स होती है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अब अनएम्प्लॉयमेंट की अगर कैलकुलेशन की जाए तो कैसे कैलकुलेशन की जाती है अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में? नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, जिनके पास काम नहीं है, दोज हु आर एबल टू विलिंग टू वर्क एंड डोंट हैव द जॉब, वैसे वाले लोग डिवाइड बाय लेबर फोर्स, wherein we are including who are working and not working, and not working में भी seeking वाले ही. Okay, multiply by 100. Okay, so we get the rate of unemployment in our country. अब next topic 7.2, that is participation of people in the employment. Okay, let's understand this topic, participation of people in the employment. It refers to participation of people in the employment activity. Worker population ratio से ये पता हम कर सकते हैं कितने वर्कर्स पार्ट ले रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में. फॉर दैट यू नीड टू हैव वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. नाउ लेट्स सी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री. उससे हमें ये पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हमारे कंट्री में कितनी है. ओके, एंड दिस रेशियो ऑल्सो हेल्प अस टू नो द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज पार्टिसिपेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, परसेंटेज कितना एंगेज्ड है गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन में, दैट वी कैन कम टू नो. जितना ये रेशियो ज़्यादा है, द मोर इज दिस रेशियो, it means more number of people are engaged in what you call production of goods and services. अगर ये रेशियो मीडियम एंड लो है, उसका मतलब वेरी हाई proportion of its population is not involved in economic activity or not involved in the production process. अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग एंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अगर ये रेशियो कम है तो कम लोग एंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में. अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है एवरीवन? By dividing the total number of workers by the population in India and multiply by 100. So worker population ratio is equal to total workers by total population multiply by 100. Okay, this is worker population ratio. Population is defined as the total number of people who reside in the particular locality or the country at a particular point of time. That is population, total number of people. Okay. Now let us have some statistic analysis here. India का जो ये worker population ratio है 2011-12 का है. Let us see that worker population ratio. टोटल है एंड रूरल एंड अर्बन का अलग अलग दिया है एंड मैन एंड वीमेन का अलग अलग दिया है. ओके, सबसे पहले देखते हैं मैन. 54.4% पीपल है वो एंगेज्ड, मतलब एक्चुअली पॉपुलेशन का जो 54.4% हैं, जितने मैन हैं उनका 54.4% है वो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है. अब रूरल एंड अर्बन दोनों जगह पे देखने जाए तो ये दोनों इक्वली हैं. 54.3 इन रूरल एरिया एंड 54.6 है वो अर्बन एरिया में. मतलब मैन जो है इट इज़ एंगेज्ड इन वर्क रूरल एंड अर्बन एरिया में इक्वली. यहीं अगर हम विमेन में देखने जाए तो बहुत डिफरेंस है. ओके, टोटल विमेन्स वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की अगर बात की जाए तो वो है 21.9, मतलब 22% जितना हुआ, जिसमें से 24.8% रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में कम है ओनली 14.7%. ओके, अब सो टोटल देखने जाओ तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 38.6% है
Okay, and rural and urban it is 39.9 and 35.5. Okay, now what the table here shows everyone, compared to urban sector, people in rural area have limited resources to get education. एजुकेशन लेवल उनके पास बहुत रिसोर्सेज कम है रूरल एरिया में, सो दे पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट. फॉर एवरी 100% 39 आर वर्कर्स इन इंडिया. एवरी 139 वर्कर्स इंडिया में हैं. जब इन रूरल एरियाज अगर ये देखने जाते हैं तो 36 is about 36 as compared to 40 in say rural areas. Okay, so you can see here urban area की अगर बात करें तो वो 35.5, so nearly 36 है, and rural area की अगर बात करें तो वो 40 है. Okay, now next, number of men in rural area वो 54.3% हैं, जो कम है, लेस देन मैन इन द अर्बन एरिया. मतलब 54.6 ऑलमोस्ट इक्वली है, लेकिन फिर भी देखने जाओ स्टेटिस्टिकली एंड डिजिट वाइज तो रूरल एरिया में कम है एज कंपेयर टू द अर्बन, विच शोज दैट रूरल एरिया से माइग्रेट होके अर्बन एरियाज में आते हैं. नंबर ऑफ विमेन वर्कर 24.8 है रूरल में, विच इज़ मोर देन अर्बन एरिया में जो 14.7 है, जो ये बताता है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है रूरल एरिया में, बिकॉज वहाँ वुमेन्स भी ज़्यादा एंगेज्ड हैं एज कंपेयर टू द अर्बन वर्कर्स में. कंपेयर टू फीमेल, मोर मेल्स आर फाउंड इन वर्किंग. इट इज़ कॉमन टू फाइंड फैमिलीज इन इंडिया दैट इंडिया में है वो फीमेल वर्कर्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं, फीमेल मेंबर्स जो हैं वो डिस्करेज किए जाती हैं वर्क के लिए, because men are able to earn high income as compared to women. Okay, so women in general and urban women in particular are not working. Generally देखने जाओ तो women are less working or not working. One of the main reason here is that women जो हैं वो कौन सी एक्टिविटी में engaged होती हैं, हाउसवाइफ है, women's working for the family in the farms who are not paid. So this is the reason वो workers की calculation में नहीं आते हैं. Okay, now let's look at the next topic. Okay, now the topic that we are going to see is the distribution of employment, region wise, gender wise and different sector wise. Okay, now distribution of employment refers to worker population ratio according to various aspects. That is, we can study distribution of employment on different basis. Gender के basis पे हम समझ सकते हैं employment का distribution कैसे है, region, rural and urban के व्यू पॉइंट से देख सकते हैं, and sector मतलब primary, secondary and tertiary के व्यू पॉइंट से भी हम समझ सकते हैं. Okay, let us study. ये एक डेटा ही है. Okay, from this pie chart also you can understand. देखो अभी जेंडर के व्यू पॉइंट से देखते हैं मेल एंड फीमेल में. पहले मेल के बारे में अगर देखें तो वी हैव रेगुलर सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड कैजुअल हैं. ओके, तो सबसे ज़्यादा जो है मेल वर्कर्स की अगर हम बात करें तो 51% हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रेगुलर सैलरीज वाले जो हैं वो 20% हैं एंड 29% जो हैं वो कैजुअल हैं. मतलब जो टेम्पररी बेसिस पे आज उनके पास जॉब है, हो सकता है कल नहीं है, समथिंग लाइक दैट. एंड फीमेल वर्कर में अगर हम देखने जाए ये डेटा एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर फीमेल के व्यू पॉइंट से, तो यहाँ भी 56% जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सिर्फ 13% हैं वो रेगुलर हैं एंड 31% है वो कैजुअल हैं. तो दोनों में अगर देखने जाओ तो आप मेल हो या फीमेल वर्कर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा है. ओके, देन इज द कैजुअल वन एंड द लास्ट इज द रेगुलर एम्प्लॉयड. ओके, सो दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय से जेंडर के व्यू पॉइंट से. ओके, now the things which are given here, okay, it is chart में जो explanation है ये वहीं दिया है. okay, self employment is major source men and women दोनों के लिए. about chart से वो clear है. more than 50% है वो self employed है, male and female दोनों में. casual worker है वो second point पे आता है, second rank पे आता है, male and female दोनों में. approximately 30% है वो casual workers से engaged हैं and regular salary जो है वो बहुत कम है. मेल में ये 20% है एंड 13% है वो फीमेल में है. सो ये कहा जा सकता है कि द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड
are not there or might not be there. Literacy level, a higher level of literacy is required. Women might not be engaged to a great extent here. Okay. Now the distribution of employment by region. Region मतलब urban and rural region के बारे में अगर हम देखें तो क्या है, let's see. Okay, now here the differences we will see. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, रेगुलर सैलरीड में एंड कैजुअल में. अब अर्बन एरिया में देखते हैं तो 43% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, 42% रेगुलर में है एंड 15 जो है वो कैजुअल है. ओके, वेयर एज जब हम रूरल एरिया में देखने जाते हैं तो 56% सेल्फ एम्प्लॉयड से जुड़े हुए हैं, सिर्फ 9% रेगुलर वर्कर्स हैं एंड कैजुअल ज़्यादा है 35. अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट is the major source of livelihood both in rural and urban. Again, in rural areas ये जो है it is more than in urban areas. Okay, rural area में 56 है and urban में it is 43 only. Okay, in urban areas both self employment and regular employment दोनों ज़्यादा हैं urban area की बात करें तो. अब casual worker देखें तो casual worker इज़ द सेकेंड मेजर सोर्स रूरल एरिया में, जो 35% हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन में वो 15% ही है. इट इज़ हायर इन रूरल में 35 एंड 15 कंपेयर करो तो 35 बहुत ज़्यादा है. ये ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर जॉब्स. नाउ सैलरीड पर्सन, अर्बन एरिया में सैलरीड पर्सन ज़्यादा है, 42% है, वेर एज रूरल एरिया में बिल्कुल नेग्लिजिबल 9% है. ये रीज़न ये है कि रूरल एरिया में ऐसे कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो अर्बन एरिया में अवेलेबल हैं. नाउ द नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन इज़ डिफरेंट. ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट रन फैक्ट्री, शॉप एंड ऑफिसेस. ओके, सो समवन नीड्स टू बी देयर हु कैन वर्क ऑन रेगुलर बेसिस. इसलिए अर्बन एरिया में रेगुलर बेसिस वाले जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है. Now last sector here on the last topic here, distribution of employment on the basis of different sectors. Okay, in course of economic development of a country, workers flow from agriculture to secondary sector to tertiary sector. मतलब agriculture से secondary and tertiary sector में जाने लगे हैं. In this process worker migrate from rural to urban. Migration भी हो रहा है. इसको कहते हैं structural changes. ओके, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी में बढ़ता जा रहा है. दिस शिफ्ट फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर, ये हम इजीली समझ सकते हैं बाय लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय इंडस्ट्रीज. ओके, सो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 इंडस्ट्रियल डिवीजन. ओके, ये 8 इंडस्ट्रियल डिविजन्स हैं. एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, देन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, देन सर्विसेज. सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड है इस इंडस्ट्री में. ओके, सो जितने भी वर्कर्स हैं ये 8 इंडस्ट्रीज़ में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. फॉर सिंप्लिसिटी हम इन सब को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी. ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. ओके, प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें रूरल एंड अर्बन के बारे में दिया है एंड मैन एंड वुमेन के बारे में भी दिया है एंड द टोटल इज ऑल्सो गिवन. ओके, प्राइमरी सेक्टर मतलब जो है रूरल एरिया में ज़्यादा है 64.1, अर्बन में इट इज़ ओनली 6.7. ओके, एंड यही मैन एंड वुमेन देखने जाओ तो मैन है वो इसमें एंगेज हैं 43.6%, वेर एज वुमेन है वो 62.8% है. सो ऑन एंड ऑल प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग परसेंटेज वाइज रुके हुए हैं? दैट इज़ 48.9% पॉपुलेशन जो है वर्कफोर्स की वो इसमें एंगेज हैं. सेकेंडरी में देखो तो रूरल एरिया में कम है. ओके, सेकेंडरी दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट, एंड अर्बन में इट इज़ मोर 35%. मैन एंड वुमेन में अगर ये डिफरेंस देखने जाओ तो 25.9 इज एंगेज्ड इन द सेकेंडरी, वेयर एज 20% ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर. टोटल सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स रुका हुआ है दैट इज़ 24.3, एंड सर्विस सेक्टर में जो है इट इज़ रूरल एंड अर्बन में क्या है पहले देखते हैं. रूरल में बहुत कम होते हैं सर्विस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज, सो वो 15% ही है, एंड अर्बन में ज़्यादा है सर्विस सेक्टर में लोग रुके हुए, दैट इज़ 58.3%. मैन
जो हैं वो कंपेयर टू विमेन ज़्यादा इसमें एंगेज हैं 30.5, वेरेज वुमेन इज़ ओनली 17.2। एंड एवरेज देखने जाओ तो सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा लोग रुके हुए हैं 26.8। ओके, सो हियर लेट्स सी, प्राइमरी सेक्टर इज़ द मेजर सोर्स। ओके, क्योंकि 48.9%, अबाउट 49% वर्कफोर्स यहाँ पे रुका हुआ है। ओके, फॉलोड बाय द टर्शरी जो 27% है, एंड सेकेंडरी लास्ट पे है वो 24% पे। अब प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ये मेन सोर्स है रूरल एरिया में। ओके, जिसमें 64% एंगेज्ड हैं एज अगेंस्ट अर्बन में सिर्फ 7% ही एंगेज्ड हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें आती हैं, इज़ नॉट मेजर सोर्स इन रूरल एरिया, बिकॉज रूरल एरिया में ये सब ज़्यादा नहीं है, जो सिर्फ 20% देखने को मिलता है। अर्बन एरिया में ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं 35%, बिकॉज वहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा हैं। ओके, सर्विस सेक्टर में अगर हम बात करें तो मेजर सोर्स सर्विस सेक्टर में अगर है तो वो अर्बन एरिया में है, 60% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड हियर, whereas in rural it is only 16%। ओके, बिकॉज सर्विस सेक्टर है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा है। अब सर्विस सेक्टर में अगर हम बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन ये सब अर्बन एरिया में ज़्यादा है। तो बोथ मैन एंड वुमेन वर्कर्स आर concentrated in primary sector. वुमेन वर्कर concentration is very high there, so 63% फीमेल वर्कर्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर में रुके हुए हैं, whereas less than half of male workers in that sector, because women are confined to primary sector more due to reason क्या है, lack of skill, education, poor economic condition of the family। okay, so उसमें उनको engage रहना पड़ता है। men get opportunity in other two sectors too, okay, secondary and the tertiary sector। okay, that's it for this session। okay, in our next session we will further talk about few more topics from the chapter। okay, till then thank you and have a nice day। read the topic properly, the topic is as such, जो आप पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। okay, the topic, the chapter is about employment। if still any doubt we will discuss about this in our live classes। okay, thank you and have a nice day।